The Joys of Motherhood is a novel written by Buchi Emecheta. It was first published in 1979. The basis of the novel is the necessity for a woman to be fertile, and above all to give birth to sons. It tells the tragic story of Nnu Ego, daughter of Nwokocha Agbari and Ona, who had a bad fate with childbearing. This novel explores the life of a Nigerian woman, Nnu Ego. Nnu's life centers on her children, and through them, she gains the respect of her community. Traditional tribal values and customs begin to shift with increasing colonial presence and influence, pushing Ego to challenge accepted notions of mother, wife, and woman. Joys of Motherhood बुच्ची एमेचेता द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। यह पहली बार 1979 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का आधार एक औरत के लिए उपजाऊ होने के लिए आवश्यकता है, और सबसे बढ़कर बेटों को जन्म देने के लिए। यह नमोकोहा अगबाड़ी और ओना की बेटी नन्नू एगो की दुखद कहानी बताती है, जिसका बच्चा पैदा करने के साथ बुरा हाल था। यह उपन्यास एक नाइजीरियाई महिला नन्नू एगो के जीवन की पड़ताल करता है। नन्नू का जीवन उसके बच्चों पर केंद्रित है और उनके माध्यम से वह अपने समुदाय का सम्मान हासिल करता है। पारंपरिक आदिवासी मूल्यों और रीति रिवाजों में बढ़ती औपनिवेशिक उपस्थिति और प्रभाव के साथ बदलाव शुरू होता है, जो ईगो को मां, पत्नी और महिला की स्वीकृत धारणाओं को चुनौती देने के लिए धकेलता है। Summary: Nwokocha Agbari is a proud, handsome and wealthy local chief. Although he has many wives, he finds a woman named Ona more attractive. Ona, or a priceless jewel, is the name he has given her. She is the daughter of a fellow chief. When she was young, her father took her everywhere he went, saying she was his ornament. And Nwokocha Agbari would say jokingly in response, "Why don't you wear her around your neck like an Ona?" It never occurred to him that he would be one of the men to later ask for her when she grew up. सारांश: नमोकोचा अगबाड़ी एक गर्व, सुंदर और समृद्ध स्थानीय प्रमुख है। हालांकि उनकी कई पत्नियां हैं, फिर भी उन्हें ओना नामक एक महिला अधिक आकर्षक लगती है। ओना, या एक अनमोल गहना, वह नाम है जो उसने उसे दिया है। वह एक साथी प्रमुख की बेटी है। जब वह छोटी थी तो उसके पिता उससे हर जगह ले गए, यह कहते हुए कि वह उसका आभूषण था, और नमोकोचा अगबाड़ी ने जवाब में मजाक में कहा, "आप उसे ओना की तरह अपने गले में क्यों नहीं पहनते हैं?" उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह बड़ी होने के बाद पुरुषों में से एक हो। During one rainy season, Chief Agbari and his friends have gone elephant hunting, and having come too near the heavy creature, the chief is thrown with a mighty tusk into a nearby sugarcane bush and is pinned to the floor. He aims his spear at the belly of the mighty animal and kills it, but not until it has wounded him badly. Agbari passes out, and it seems to all he has died. He wakes up after several days to find Ona beside him. During his period of recovery, he sleeps with her, and shortly thereafter he finds out that his senior wife Agunwai is very ill. She later dies, and it is thought that perhaps she became ill as a result of seeing her husband making love to Ona on his apparent deathbed. एक बरसात के मौसम के दौरान चीफ अगबाड़ी और उसके दोस्त हाथी का शिकार करने गए थे और भारी जीव के पास आ गए थे। मुख्य को एक शक्तिशाली गन्ने के साथ पास के गन्ने की झाड़ी में फेंक दिया गया और उसे फर्श पर डाल दिया गया। वह ताकतवर जानवर के पेट में अपने भाले का उद्देश्य रखता है और उसे मारता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि वह उसे बुरी तरह से घायल नहीं कर देता। अगबाड़ी बाहर निकलता है और लगता है कि वह मर गया है। वह कई दिनों के बाद उठता है ताकि ओना को उसके पास पा सके। वसूली की अपनी अवधि के दौरान वह उसके साथ सोता है और इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि उसकी वरिष्ठ पत्नी अगुणवा बहुत बीमार है। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और यह सोचा जाता है कि शायद वह ओना को उसके पति को अपनी मृत्यु के बाद प्यार करते हुए देखने के परिणामस्वरूप बीमार हो गई थी।
The funeral festivities continue through the day. When it is time to put Agurnwai in her grave, everything she will need in her afterlife having been placed in her coffin, her personal slave is called. According to custom, a good slave is supposed to jump into the grave willingly to accompany her mistress, but this young and beautiful slave begs for her life, much to the annoyance of the men. The hapless slave is pushed into the shallow grave but struggles out, appealing to her owner Agbari, whose eldest son cries angrily, "So my mother does not deserve a decent burial." So saying, he gives her a sharp blow with the head of the cutlass. Another relative gives her a final blow to the head and she falls into the grave, silenced forever. The burial is then completed. अंतिम संस्कार उत्सव दिन के माध्यम से जारी है। जब अगुणवा को उसकी कब्र में डालने का समय होता है, तो उसे अपनी जीवन शैली में जिस चीज की आवश्यकता होगी, उसे उसके ताबूत में रख दिया जाता है, जिसे उसका निजी दास कहा जाता है। रिवाज के अनुसार एक अच्छी दास को अपनी मालकिन के साथ स्वेच्छा से कब्र में कूदना होता है, लेकिन यह युवा और सुंदर दास अपने जीवन के लिए भीख मांगता है, जो पुरुषों की झुंझलाहट के लिए बहुत है। असहाय दास को उथली कब्र में धकेल दिया जाता है, लेकिन उसके मालिक आगबाड़ी से अपील करता है, जिसका बड़ा बेटा गुस्से में रोता है, तो मेरी माँ एक सभ्य दफन के लायक नहीं है। इतना कहते हुए वह उसे कटलेट्स के सिर के साथ एक तेज झटका देता है। एक अन्य रिश्तेदार ने उसे सिर पर अंतिम झटका दिया और वह हमेशा के लिए खामोश होकर कब्र में गिर जाती है। फिर दफनाया जाता है। Ona becomes pregnant from sleeping with Agbari and delivers a baby girl named Anu Ego. 20 bags of cowries. The baby is born with a mark on her head resembling that made by the cutlass used on the head of the slave woman. Ona gives birth to another son, but she dies in premature labor and her son also dies a week afterwards. Anu Ego becomes a woman but is barren. After several months with no sign of fruitfulness, she consults several herbalists and is told that the slave woman, who is her chi, or patron goddess, will not give her a child. Her husband Amatokwu takes another wife who before long conceives. आगबा के साथ सोने से ओना गर्भवती हो जाती है और नन्नोएगो, गाय के 20 बैग नाम की एक बच्ची को जन्म देती है। बच्चा अपने सिर पर एक निशान के साथ पैदा होता है, जो गुलाम महिला के सिर पर इस्तेमाल किए गए कटलेट द्वारा बनाया जाता है। ओना एक और बेटे को जन्म देती है, लेकिन समय से पहले प्रसव में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा भी एक हफ्ते बाद मर जाता है। नन्नू एगो महिला बन गई लेकिन बांझ है। कई महीनों तक फलने फूलने का कोई संकेत नहीं होने के बाद वह कई वनौषधियों का संरक्षण करती है और उसे बताया जाता है कि वह दास महिला, जो उसकी ची या संरक्षक देवी है, उसे कोई बच्चा नहीं देगी। उसका पति अमातोकु एक और पत्नी लेता है जो लंबी गर्भधारण से पहले की है। Anu Ego returns to her father's house. She is married, sight unseen, to a new husband who lives in Lagos. So she journeys from her village to the city where she meets her new husband, Knife, whom she does not like but prays that if she can have a child with him, she will love him. She does give birth to a baby boy, whom she later finds dead. Shocked, she is on the verge of jumping into the river when a villager draws her back and comforts her. नन्नू एगो अपने पिता के घर लौटता है। वह विवाहित है, दृष्टिहीन है, लेगोस में रहने वाले एक नए पति के लिए। इसलिए वह अपने गांव से उस शहर की यात्रा करती है जहां वह अपने नए पति नैनीप से मिलती है, जिसे वह पसंद नहीं करती है, लेकिन प्रार्थना करती है कि अगर उसके साथ एक बच्चा हो सकता है तो वह उससे प्यार करेगी। वह एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे वह बाद में मृत पाती है। हैरान, वह नदी में कूदने की कगार पर है जब एक ग्रामीण उसकी पीठ खींचता है और उसे दिलासा देता है। Over the course of her life, she gives birth to 9 surviving children. Her husband, a laundry man for a white man,
is drafted into the army during wartime. But on her own, a new ego can barely manage to feed them. When her husband's brother dies, he inherits his 4 wives and moves the youngest and prettiest into the home. And a new ego enjoys a bitter rivalry with this new wife. In the midst of the war, the new wife leaves to become a prostitute while a new ego devotes her life to providing for her children. अपने जीवन के दौरान वह 9 जीवित बच्चों को जन्म देती है। उनके पति, एक श्वेत व्यक्ति के लिए एक कपड़े धोने वाले, को युद्ध के दौरान सेना में नियुक्त किया गया था, लेकिन अपने स्वयं के नन्नू अहंकार को खिलाने के लिए मुश्किल से प्रबंधन कर सकते हैं। जब उसके पति के भाई की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपनी 4 पत्नियों को विरासत में देता है और घर में सबसे छोटी और सुंदर लड़की को ले जाता है। इस नई पत्नी के साथ नन्नू अहंकार एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता का आनंद लेता है। युद्ध के बीच में नई पत्नी एक वेश्या बनने के लिए चली जाती है, जबकि नन्नू अहंकार अपने बच्चों को प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। She scrimps and saves to provide a secondary school education for her oldest son, in the hope that he will help support the rest of the family. After he graduates, he expects more support so he can study abroad. Her second son wants the same thing. Her third child, a girl, runs off with the Yoruba butcher's son. When knife gives chase, he injures a man and is taken to court where he is put in jail. And a new ego's 4th child marries the lawyer who pleaded knife's case and offers to rear the 5th child. वह अपने सबसे पुराने बेटे के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्क्रैम्प करती है और बचाती है, इस उम्मीद में कि वह परिवार के बाकी लोगों का समर्थन करने में मदद करेगी। स्नातक होने के बाद वह अधिक समर्थन की उम्मीद करता है ताकि वह विदेश में अध्ययन कर सके। उसका दूसरा बेटा भी यही चाहता है। उसका तीसरा बच्चा, एक लड़की, एक योरूबा कसाई के बेटे के साथ भागता है। जब नैनीप पीछा करता है, तो वह एक आदमी को घायल कर देता है और उसे अदालत में ले जाया जाता है, जहां उसे जेल में डाल दिया जाता है। ननुएगो का चौथा बच्चा वकील से शादी करता है जिसने नैनीप के मामले की पैरवी की थी, और 5वें बच्चे को वापस देने की पेशकश की। And a new ego returns to the village, where she is fated as a great woman because with 2 married daughters and 2 sons abroad, the second son emigrates to Canada. She is expected to be filled with the joys of motherhood. It is suggested that her children's success should be enough for her. She dies a lonely death in the village, and is regarded as a mad woman. Only after her death do her children arrive to throw a lavish funeral for her. They spend time and money on her funeral which they did not spend in her life. It is noted that an new ego never gives children to women who pray to her for them. नन्नू एगो गांव लौटता है, जहां उसे एक महान महिला के रूप में लाया जाता है, क्योंकि 2 विवाहित बेटियों के साथ और 2 बेटे विदेश में, दूसरा बेटा कनाडा में रहते हैं, उसे मातृत्व की खुशियों से भरा होने की उम्मीद है। यह सुझाव दिया जाता है कि उसके बच्चों की सफलता उसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वह गांव में एक अकेली मौत मर जाती है और उसे एक पागल औरत माना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद ही उसके बच्चे उसके लिए एक भव्य अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं। वे उसके अंतिम संस्कार पर समय और पैसा खर्च करते हैं जो उन्होंने उसके जीवन में नहीं बिताया। यह ध्यान दिया जाता है कि नन्नू ईगो कभी भी उन महिलाओं को बच्चे नहीं देती है जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।